Good morning, students. Today we'll start our next chapter, that is rural development. We'll be discussing about the concept of rural development, what rural development exactly means. It states that the action plans for the social and economic growth of the rural areas. That means rural development means an action plan for the social and economic growth of the rural areas. Here, economic growth means we will be focusing about the quality of life or the standard of living of the general people of the rural areas or in rural areas. Okay, and in social growth we will be discussing, or we will include the facilities which are available in the rural areas. Okay, so we'll be improving, or there is an need for improvement in the facilities which are available in the society in the rural areas. Okay, that will be the social development. Okay, that means, for example, the facilities of education and health. These are the social growth or development. And economic growth means improvement in quality of life or standard of living of the general people of the rural areas. Okay, these 2 points will be focusing on the rural development. Okay, so here we will be discussing about the problems, the two types of, or the two categories of problems we will discuss in this chapter. The one is the lingering challenges and the other one is the emerging challenges in the rural areas. Okay, some challenges are categorized as the lingering challenges and some challenges are categorized as the emerging challenges. So what are the lingering challenges? Okay, lingering challenges are the challenges which remained for a longer duration or for a very long time period as a challenge or the problem in the rural areas. जो काफ़ी लंबे समय तक rural areas में या rural people के लिए एक challenge या problem रहे, उनको हमने lingering challenges का नाम दिया है. And some are the problems which have emerged over the years. Okay, कुछ time के साथ या with the passage of time कुछ और problems हमारी arise हुई है. Okay, उनको हमने emerging challenges का नाम दिया है. Okay, so these are the lingering challenges, the two challenges, challenge of rural credit and the challenge of rural marketing. Okay, these are the two problems which remain for a longer duration in the rural areas, और you can say ये problems हमेशा ही rural areas में या rural people को face करनी पड़ी हैं. ठीक है, तो वो challenges lingering challenges हैं, और those challenges are considered as lingering challenges which remained for a longer duration in the rural areas. And the emerging challenges are basically the changes which have emerged over the years, जो time के साथ साथ emerge हुए हैं. ठीक है, that means ये change होते रहे हैं इन ये प्रॉब्लम्स ओवर द ईयर. सेम नहीं रही, स्टिल नहीं रही, ये ओवर द ईयर चेंज. कभी कोई प्रॉब्लम एक इमर्जिंग प्रॉब्लम के रूप में थी, कभी कोई प्रॉब्लम. ओके, सो नाउअडेज वी आर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड द चैलेंज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. दैट दीज आर द इमर्जिंग चैलेंजेस. ये इमर्ज हुई है ओवर द ईयर्स. ऑर्गेनिक फार्मिंग बिकॉज हम आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन जो केमिकल फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ करने लग गए, तो हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक प्रॉब्लम आई कि वी नीड टू फोकस ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग इंस्टेड ऑफ इनऑर्गेनिक फार्मिंग. ओके, basically the concept of organic farming has been deleted by the CBSE and NCERT. ठीक है, ये चैलेंज, ये प्रॉब्लम हम इस साल नहीं पढ़ेंगे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द टाइम पीरियड ड्यू टू द कोविड. ओके, सो हमारे पास टाइम पीरियड की शॉर्टेज, इसलिए NCERT ने कुछ सिलेबस को डिलीट किया है. सो चैलेंज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नॉट इन द सिलेबस इन दिस ईयर. ओके, so first of all we'll discuss about the lingering challenges of the rural areas. Okay, the first challenge is the challenge of rural credit. That means the requirement of credit facilities or the requirement of loans in the rural areas remained very bigger challenge for a longer duration. And nowadays still the rural people also faces this problem due to the certain reasons. This will we will discuss these reasons or these causes later on this chapter, in this chapter. Now first of all we will discuss why the rural people or the farmers, mainly farm people or the people who are engaged in farm activities, why these people require or need credit
और लोन। ओके, इन लोगों को लोन की या क्रेडिट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? बेसिकली द क्रेडिट इज रिक्वायर्ड for two reasons. The one is productive purpose and the other one is non-productive or unproductive purpose. Okay, एक प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन चाहिए लोगों को, दूसरा नॉन प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए. ओके, so the productive purpose, as the name suggests, that means the people need money to start any productive activities either or to expand their productivity. Okay, लोगों को पैसा चाहिए to invest in their activities, economic activities, either to expand it or to start it. या तो कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए, लाइक कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, प्लांट लगाना है, डेयरी फार्मिंग है. ओके, या फिर लाइक फार्मिंग में ही उनको इनपुट्स परचेज करने, ट्रैक्टर खरीदना है, ट्यूबवेल बनाना है, लाइक दैट. ठीक है, ये प्रोडक्टिव पर्पजेज के लिए उनको लोन. बिकॉज प्रोडक्टिव पर्पज किस लिए? बिकॉज with the help of this money or these sources or these funds, we are creating some resources which will give us return in near future. Okay, or which will become the source of income in future. Okay, that means इनको productive purpose के लिए इसलिए कहा गया है, productive loans इसलिए कहा गया है because ये पैसा कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ में खर्च किया जा रहा है जो ऐसे रिसोर्सेज जनरेट कर रही हैं, ऐसे रिसोर्सेज खरीदे जा रहे हैं जो फर्दर हमारी इनकम जनरेट करेंगे या इनकम का सोर्स बन जाएंगे. दैट्स वाई दीज आर प्रोडक्टिव लोन्स और द लोन्स फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ऑफ द प्रोडक्टिव पर्पस. दैट मीन्स हमारे प्रोडक्शन का सोर्स बनेंगे या इनसे हम प्रोडक्शन के रिसोर्सेज खरीद रहे हैं जो फर्दर हमें इनकम जनरेट करके देंगे. ओके, दूसरी तरफ द नॉन प्रोडक्टिव लोन्स और द लोन्स विच आर used in unproductive activities. That means this money or these funds which are taken on loan or through loans are used or spent on such activities which do not create any production or which do not give us return. Okay, ऐसी जगह पे हमने इन फंड्स को यूज़ कर लिया है जो हमें फ्यूचर में रिटर्न या इनकम जनरेट करके नहीं देंगे. दैट मीन्स जिनसे कोई प्रोडक्शन नहीं होगा या इकोनॉमिक एक्टिविटी हम इनसे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. दीज आर अनप्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव लोन्स. ओके, so like what are the non-productive or unproductive loans, like और एक्सपेंडिचर्स, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स भी हम कह सकते हैं. ओके, उनके लिए लिया गया लोन और नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स के लिए लिया गया लोन. दीज आर द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मैरिजेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, लाइक. ओके, सो ये कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो नॉन प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव हैं. ठीक है, जिनके लिए हमें या फिर लोगों को लोन लेना पड़ जाता है, लाइक मेडिकल या फिर किसी ट्रीटमेंट के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेडिकल एक्सपेंसेस बेयर करने पड़े, जिसकी वजह से मीन्स उनके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें लोन की ज़रूरत पड़ी या लोन लेना पड़ा. और ये पैसा ऐसी जगह पे खर्च किया गया जो फ्यूचर में वापस नहीं आएगा. ठीक है, मेडिकल एक्सपेंसेस बेयर कर लिए उस पैसे से. ओके, तो वापस नहीं आएगा, रिटर्न नहीं आएगा. ओके, कोई प्रोडक्शन भी इनसे नहीं हुआ है, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी भी परफॉर्म नहीं. मैरिजेस सेम एज इन द केस कि मैरिज में खर्च किए गए हैं पैसे, तो वो भी रिटर्न नहीं आएंगे. ओके, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ लोन्स और द रिक्वायरमेंट्स जिनकी वजह से जो फार्मर्स हैं या फिर रूरल पीपल हैं उनको लोन, जनरली किसी को भी लोन लेना पड़ सकता है, या तो प्रोडक्टिव पर्पज से या फिर अनप्रोडक्टिव पर्पज से. दैट मीन्स दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, टू टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट और नॉन प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट. ओके, सो नाउ विल डिस्कस अबाउट the loans on the basis of time period, the availability of loans or the loans available on the basis of time period. Okay, generally हम तीन तरह से टाइम पीरियड्स के बेसिस पे लोन को डिवाइड करते हैं: शॉर्ट टर्म लोन्स और शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट्स और मीडियम टर्म लोन्स, एंड द अदर वन इज लॉन्ग टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म लोन्स. ओके, we have categorized or classified these terms or these credits on the basis of time periods or the tenure for which, or the duration for which the loan is being taken. That means the maximum time period for which we'll be using the loan amount. Okay, after that or till that time period we will have to repay it. Okay, उस time period के अंदर अंदर हमें उस लोन को वापस करना होता है. ओके, ये वो टाइम पीरियड है. तो शॉर्ट टर्म लोन जो है वो जनरली 6 to 12 months. ओके, दीज लोन्स आर टेकन for 6 to 12 months. That means within 1 year we'll have to repay these loans. Okay,
ये वो लोन है जिनको हमें एक साल के अंदर अंदर वापस करना होता है। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड इन लोन्स का है 1 ईयर। ओके, एक साल से ज़्यादा के नहीं लिए जाएंगे। दैट मीन्स इनको एक साल के अंदर अंदर रीपे करना है या वापस करना है। नाउ वाई दीज लोन्स आर टेकन, कि शॉर्ट टर्म लोन्स की क्यों ज़रूरत होती है। बेसिकली जो लोन रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो हमें दिखाई गई हैं कि जो फार्मर्स हैं या फार्म फैमिलीज़ हैं, ठीक है, वो क्यों लोन लेती हैं। बिकॉज जो स्मॉल फार्मर्स, बेसिक मेनली जो स्मॉल फार्मर्स हैं और जो मार्जिनल या मीडियम फार्मर्स हैं, ठीक है, जिनके पास लैंड होल्डिंग्स काफ़ी कम होती हैं, ठीक है, उनकी इनकम या इनकम लेवल काफ़ी कम होता है। सो दे आर नॉट एबल, देयर सेविंग्स आर वेरी लो, सो दे आर नॉट एबल टू invest every time to expand their activities either or to purchase some new resources. Okay, तो उनके पास इनकम लेवल कम होती है क्योंकि प्रोडक्शन कम है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी उनकी लो है तो प्रोडक्शन कम होता है, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, लैंड एरिया कम है, तो प्रोडक्शन कम है तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो सेविंग्स भी कम होगी। तो फर्दर उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए जो है फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, या तो अपने प्रोडक्टिव कैपेसिटी या प्रोडक्शन को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो भी उनको फर्दर रिसोर्सेज खरीदने पड़ेंगे, परचेज करने पड़ेंगे, सो दैट दे नीड लोन्स। ओके, नेक्स्ट वन इज द gestation पीरियड। ठीक है, द पॉइंट इज सेइंग द gestation lag between sowing and harvesting of the crops. The gestation period is time gap, okay, between the sowing and harvesting. Okay, जब किसी क्रॉप को मीन्स ग्रो करते हैं तो सोइंग टाइम पीरियड से और जो हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, जब वो उगाया गया है और जब उसको काटा जाएगा, हार्वेस्ट किया जाएगा, उन 3 और 4 मंथ्स जितने भी टाइम पीरियड वो लेगी क्रॉप, उस टाइम गैप को हम gestation पीरियड कहते हैं। द टाइम लैग और द टाइम गैप बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड gestation पीरियड। ओके, in traditional means, okay, when we are using manures, compost and traditional means of farming, the gestation period is generally very high. जब हम जो ट्रेडिशनल मीन्स यूज़ कर रहे हैं फार्मिंग के, ठीक है, मैन्योर यूज़ कर रहे हैं, कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो जो gestation पीरियड है, दैट मीन्स वो क्रॉप जो है हार्वेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है एज़ कम्पेयर टू द साइंटिफिक मेथड। केमिकल फर्टिलाइजर्स के मुकाबले जो ट्रेडिशनल मैन्योर्स हैं या कंपोस्ट हैं, वो फसल को या क्रॉप को ज़्यादा टाइम लगाते हैं हार्वेस्ट या फिर यू कैन से राइपन होने में। ओके, जब तक वो पकेगी तब ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, सो ट्रेडिशनल मीन्स ही यूज़ कर रहे थे फार्मर्स बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन, तो gestation टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है, जिस वजह से उनके उन ड्यूरेशन के जो खर्चे थे, ठीक है, उन ड्यूरेशन के एक्सपेंडिचर्स को मीट आउट करने के लिए दे नीड टू टेक लोन समटाइम्स। ओके, क्योंकि जब तक फसल पक नहीं जाएगी तब तक उसको बेचा नहीं जाएगा काट के। ओके, सो हार्वेस्टिंग से पहले तो बेचा नहीं जाएगा तो इनकम अर्न नहीं हो पाएगी। ओके, तो उस gestation टाइम पीरियड जितना ज़्यादा लंबा होगा उतनी ही ज़्यादा लोन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएंगे, चांसेस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रेडिट में इंक्रीज। ओके, सो इन दो पर्पसेस के लिए जो है लोन्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स के पास पैसा नहीं है तो कैपिटल की कमी है। दैट्स वाई इफ दे वांट टू increase their resources, so they need their capital, so they need to take their loan to fulfill their capital requirement. Again, the second one is if the gestation time lag or the gestation period is long, so to maintain their household expenditures they need to take loan. Okay, so it depends whether they will take the short term loan और मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स। ओके, वो शॉर्ट टर्म लोन लेंगे या मीडियम टर्म लोन लेंगे या लॉन्ग टर्म लोन लेंगे, ये डिपेंड करता है कंडीशन से सिचुएशंस के ऊपर कि उन्हें किस पर्पस के लिए लोन चाहिए। ओके, सो शॉर्ट टर्म क्रेडिट और शॉर्ट टर्म लोन्स विच आर टेकन for a very short time period, generally for 1 year. Okay, within 1 year these loans have to be repaid. Okay, within 1 year इनको वापस किया जाएगा, एक साल के ड्यूरेशन के लिए लिए जाते हैं। सो दैट मीन्स इनकी जो अमाउंट है वो भी कम होगी, कम अमाउंट हम लेंगे, ठीक है। किस पर्पस के लिए लिए जाते हैं, सो द पर्पसेस फॉर विच द शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज टेकन आर टू परचेज द इनपुट्स, ठीक है, जो फार्म इनपुट्स हैं उनको परचेज करने के लिए, लाइक सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, जो कि कई बार काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल फार्मर्स को पे करना पड़ता है, तो उस केस में भी दे नीड टू टेक लोन। ओके, इन दैट केस if they are not having sufficient amount of money to repay their bills, so in that case they need to take some amount of money from others, so they need to borrow. Okay,
सो दीज आर द शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स, इन पर्पजेज के लिए लोन लेते हैं. ओके, वी नीड टू कीप रिमेंबर ओनली टू थिंग्स, द purposes for which the certain or the particular loan is being taken और द रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, किस पर्पज है, किस रिक्वायरमेंट के लिए लिया गया है. तो जो इनपुट्स, फार्म इनपुट्स जो है हम खरीदने के लिए लेते हैं, लाइक इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स टाइप, इनके लिए हम शॉर्ट टर्म लोन अवेल करते हैं. ठीक है, तो छोटे टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि किसी पर्टिकुलर क्रॉप सीजन में ही लिया गया होगा. मे बी रबी क्रॉप के लिए इनपुट्स परचेज करने के लिए लोन लिया, खरीफ के लिए नहीं लिया गया होगा. ओके, सो उसकी ड्यूरेशन 6 महीने रह सकती है. ओके, सो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन लिया गया है. The next one is medium term credit or medium term loans. It ranges from 12 months to 5 years. Okay, till 12 months short term है. After अगर means हमें ज़्यादा time period के लिए लोन लेना है, that will be categorized into medium term credit or medium term loans, and it ranges from 12 months to 5 years. Okay, that means within 5 years will have to repay it. Okay, अगर 5 साल से एक्सीड करता है ड्यूरेशन तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट या लॉन्ग टर्म लोन में आ जाएगा. नाउ व्हाई दीज credits or these loans are being availed or taken by the farmers. Okay, so the purpose for which the medium term loans or the credits are being taken to purchase the machinery like tractors and ancillary instruments and threshers, harvesters, such as. Okay, for such purposes the farmers need higher amount than other inputs which are being taken like pesticides and fertilizers. Okay, so fertilizers और पेस्टिसाइड से ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करने की ज़रूरत है इन मशीनरीज को परचेज करने के लिए. सो इनको वापस करने के में भी टाइम लगेगा. ओके, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट इनमें बोरो कर या फिर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, तो ज़्यादा अमाउंट बोरो करनी पड़ेगी. ओके, तो इनको वापस रीपे करने के लिए भी फार्मर्स को टाइम पीरियड ज़्यादा चाहिए. ओके, दैट्स वाई दीज आर कैटेगराइज इन मीडियम टर्म. ओके, 12 मंथ्स टू 5 ईयर्स के बीच में इनको वापस किया जाएगा. कि ज़्यादा अमाउंट लेंगे तो वापस करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा. ओके, सो परचेज ऑफ मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेस. तो फेंसेस दैट मीन्स कि जो अपने जो लैंड होल्डिंग है, ठीक है, उसके चारों तरफ वो फेंसेस लगा देते हैं ताकि जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनसे क्रॉप को डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सके. दैट्स वाई दे keep the fences around the land holdings. Digging the wells. Okay, तो ये सारे लाइक फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए उनको ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है, तो वो लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म लोन लेते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ द लॉन्ग टर्म लोन. ठीक है, 5 साल तक मीडियम टर्म लोन है कि अगर लोन 4 साल के लिए लिया गया है, 3 साल के लिए लिया गया, 5 साल के लिए, तो उसकी मीडियम टर्म कैटेगरी में डाला गया है. एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो है वो एक्सीड करेंगे 5 ईयर्स से. दैट मीन्स 5 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए अगर लोन लिया गया है तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट कहा जाएगा. तो 5 to 20 ईयर्स. ओके, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है 20 ईयर्स. दैट मीन्स 20 साल में अगर उसको रीपे किया जाए बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड है. ओके, सो दैट इज़ लॉन्ग टर्म क्रेडिट. सो दैट मीन्स कि अगर इतने लंबे टाइम में उसे वापस किया जा रहा है तो ऑब्वियसली द अमाउंट विच इज़ बीइंग टेकन, ठीक है, थ्रू दिस लोन विल ऑल्सो बी वेरी हाई. ओके, क्योंकि इतना लंबा टाइम पीरियड इस लोन को रीपे करने के लिए लिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो अमाउंट ऑफ मनी है जो ली गई है इस लोन के थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा हाई रही होगी. तो किस पर्पज़ के लिए ली गई होगी? ऑब्वियसली इतना ज़्यादा अमाउंट जो अगर हम ले रहे हैं तो लैंड परचेज करने के लिए या अपनी लैंड को एक्सटेंड करने के लिए लिया जा रहा होगा. दैट मीन्स परमानेंट जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, ठीक है, परमानेंट इम्प्रूवमेंट्स फार्मिंग में, उनको करने के लिए जो है ये अमाउंट ऑफ मनी जो ले रहे हैं लोन के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ एक्स्ट्रा लैंड. ओके, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट, लाखों करोड़ों रुपए उनको खर्च करने पड़ेंगे. दैट्स वाई उसको रीपे करने में टाइम भी लगेगा. सो दीज आर लॉन्ग टर्म लोन्स. ओके, सो इन पर्पसेस के लिए उनको अलग अलग टाइम पीरियड के लिए लोन चाहिए होता है फार्मर्स को. एंड दीज लोन्स आर क्लासिफाइड इनटू प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव. हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो लोन लिया गया है उसको कहाँ पे खर्च किया जाएगा. ठीक है, तो उनको उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव लोन्स में. दीज शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स ऑल्सो बेयर्स डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, इन टाइम पीरियड्स के बेसिस पे इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी वेरी करेगा कि शॉर्ट टर्म का अलग होगा, मीडियम टर्म का अलग होगा एंड लॉन्ग टर्म का अलग रखा जाएगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वेरी करता है.
The next one is the source of rural credit. Okay, the sources of rural credit. Okay, what are the various sources from which the farmers can seek or take these loans? Okay, productive or non productive या productive और unproductive loans ले सकते हैं, वो कौन से sources हैं? So these sources are divided into, classified into two parts. One is institutional and the other one is non-institutional sources. Okay, what are the institutional and what are these non-institutional sources of loan? Institutional sources are basically the sources which are controlled by the government, okay, or any authority of the government. Institutional sources वो sources हैं credit के जो government या government की किसी authority के द्वारा control किए जा रहे हैं. On the other side, the non-institutional sources are the sources which are not controlled, ठीक है, which are not regulated, ठीक है, जो organized means नहीं है या organized sources नहीं है या government उनको control नहीं करती है. These are non-institutional sources. Okay, sources are means जिन जहाँ से वो लोन लेंगे. Okay, non-institutional वो है जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है उनको. ओके, वो नॉन इंस्टीट्यूशनल है. फॉर एग्जांपल लैंडलॉर्ड्स हैं, ज़मींदार जिनको हम कहते हैं. ओके, जो अदर इंटरमीडियरीज हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है, जो रिच पीपल हैं, ठीक है, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है और वो लोन देते हैं लोगों को इनफॉर्मली. So the landlords, the village traders and the money lenders, okay, these are the non-institutional sources. महाजन जिनको हम कहते थे. okay, तो इनके पास पैसा ज़्यादा है और ये लोगों को जो है लोन देते हैं हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर. गवर्नमेंट का इनका कोई कंट्रोल नहीं होता गवर्नमेंट का इनके ऊपर, या ना ही गवर्नमेंट की गाइडलाइंस या रूल्स एंड रेगुलेशन ये फॉलो करते हैं, और ना ही वो इंटरेस्ट रेट्स जो आरबीआई डिटरमाइन करता है उसको ये फॉलो करते हैं. ओके, सो दीज आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड और दीज आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. दैट्स वाई दीज आर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, किसी अथॉरिटी से बंधे हुए नहीं है, ठीक है. दैट्स वाई दीज आर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. मेनली रूरल एरिया का जो क्रेडिट है या जो लोन की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादातर प्रोपोर्शन वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ही पूरा करते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से ही पूरा होता है, ठीक है. बट नाउ डेज अगर हम आज की बात करें तो जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं या फिर बैंक्स की या बैंकिंग जो एक वेल स्ट्रेंथन्ड चेन है बैंक्स की, जो कमर्शियल बैंक्स हैं एंड रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनके फॉर्मलाइज हो जाने के बाद से रूरल जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो गई है. और यू कैन से मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ आर dependent on formal sources or institutional sources like banks, either commercial or regional rural banks. Most people are dependent on such banks to fulfill their credit requirement. Okay, otherwise many years back, if we talk about, most of the credit requirements of the rural people, most of that means more than 90%, okay, of the credit requirement of the general people were fulfilled by these non institutional sources. लोग बहुत ज़्यादा dependent थे इन sources के ऊपर. Moreover, these sources exploit the farmers or the poor people very much, okay, on or large basis. okay, काफ़ी wide बेसिस के ऊपर, लार्ज बेसिस के ऊपर, और यू कैन से बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन जो थे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पुअर पीपल या जो स्मॉल फार्मर्स थे उनकी करते थे, बोरोवर्स की करते थे एक्सप्लोइटेशन. ओके, बाय चार्जिंग ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, if these non-institutional sources exploits the poor or the small farmers or the borrowers, why these borrowers are dependent on such sources of credit? The answer is, or the cause or the reason is, collateral. Okay, collateral means whenever we take a loan or whenever seek a credit, the lender wants a guarantee or security in consideration of an asset, okay, a physical asset, so that he or she can assure or it can assure himself or itself that if the loan is not being recovered or cannot being recovered, the loss can be minimized by selling that asset. Okay, so collateral is an asset जो कि lender मांगता है in consideration of the loan given to the borrower. Okay, क्यों?
इस गारंटी के लिए कि अगर लोन रिकवर नहीं होता है तो उस लॉस को वो उस एसेट को बेच के रिकवर कर लेगा या पूरा कर लेगा. ओके, सो ड्यू टू द collateral, previously most of the rural people were dependent on non-institutional sources, because these non-institutional sources not every time requires or demand for collateral. Okay, हर बार जो है कुछ specific cases में तो करते थे लेकिन हर बार generally नहीं करते थे. Generally these non-institutional sources do not require collateral or do not demand for the collateral from the borrowers. Okay, so collateral कोई asset, कोई भी asset जो physical asset जिसकी market value है उसको हम collateral कहते थे, which is being put as a guarantee or security with the lender. Okay, so collateral is an asset given by the borrower to the lender as a guarantee against the loan. Okay, जो loan borrower ने लिया है, ठीक है, तो बोरोवर कोई अपना एसेट लाइक घर या प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, ठीक है, ज़मीन के पेपर्स हैं और सम अदर एसेट, ठीक है, उसके पेपर्स जो है वो रख देता है लैंडर के पास एज ए गारंटी कि इन केस अगर रीपे नहीं होता है तो इससे बेच के रिकवर कर लिया जाएगा. बट नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो है वो डिमांड नहीं करते हैं कोलेट्रल की, नहीं करते थे कोलेट्रल की. दैट्स वाई जो पुअर पीपल हैं या जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से ही लोन लेते हैं, बिकॉज उनके पास एसेट्स नहीं है, संपत्ति नहीं है, इसलिए वो फॉर्मल सोर्सेज से लोन नहीं ले सकते, मीन्स बैंक से लोन नहीं ले सकते थे. दैट्स वाई दे डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. ओके, दैट्स वाई उसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि प्रीवियसली और अर्लियर जो फॉर्मल सोर्सेज हैं या इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं डिड नॉट हैव large branches or chain of branches in the rural areas, or lack of accessibility of the institutional sources in the रूरल एरियाज में इन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी. दैट्स वाई पीपल हैड टू डिपेंड ऑन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. ओके, एक्सप्लॉइट होते थे फिर भी डिपेंड थे उनके ऊपर. एक तो रीज़न कोलेट्रल उनके पास नहीं था, पुअर पीपल और जो स्मॉल फार्मर्स हैं, कोई संपत्ति ऐसी नहीं कि वो गिरवी रख सकें. ओके, सेकेंड वन, जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थे अर्लियर उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी रूरल एरियाज में, मतलब पहुंच से बाहर थे. बैंक्स गांव में नहीं थे, बैंक्स की ब्रांचेस नहीं थी गांव में, काफ़ी दूर थी, रिमोट एरियाज में नहीं थी ब्रांचेस, तो वहाँ के लोगों को इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर या नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था. ओके, सो most of the credit requirement earlier was fulfilled by the non-institutional sources. Till now, if we talk about today's era, now also most of the people are depend on non-institutional sources for the short-term credit requirement, because whenever they require or they need quick क्रेडिट, ओके, क्विक क्रेडिट या क्विक मीन्स इंस्टेंट लोन की ज़रूरत है, तो उस केस में भी बैंक्स जो है फेल हो जाते हैं क्रेडिट्स प्रोवाइड करने के लिए लोगों को, लाइक इन केसेस ऑफ हॉलीडे, बैंक हॉलीडेज. ओके, लाइक वीकेंड्स पे हैं, बैंक हॉलीडेज हैं, एकदम से अगर ज़रूरत पड़ जाती है पैसे की, इंस्टेंटली मनी चाहिए, तो इन दैट केस ऑल्सो दीज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज प्रूव हेल्पफुल फॉर द पीपल. ओके, दैट्स वाई शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए आज भी लोग जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि क्विक क्रेडिट बैंक्स नहीं प्रोवाइड करते हैं. लाइक समटाइम्स देयर प्रोसेसिंग इज़ वेरी लेंदी, प्रोसेसिंग टाइम पीरियड कंज्यूम करता है वो. दूसरा, in case of holidays and in case of quick requirement of the credit, like आपको चाहिए तो बैंक्स नहीं खोलेंगे. ओके, सो इन दैट केस शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए मेनली आज भी लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड हैं. ओके, सो मोस्ट ऑफ द क्रेडिट रिक्वायरमेंट इज शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इन द रूरल एरियाज. ओके, नाउ इफ वी कम टू द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, the institutional sources comprises of the government, cooperatives, commercial banks and the regional rural banks. Okay, generally the banks, you can say either these are cooperative societies, commercial banks or regional rural banks. Okay, so these are the institutional sources because these are governed, controlled or regulated by the government or any authority of the government. Okay, these sources comprises a very less proportion of the credit which is being provided to the general people in the rural areas. काफ़ी कम proportion जो है ये comprise करते हैं, या काफ़ी कम जो लोन रिक्वायरमेंट है फुलफिल कर पाते हैं रूरल एरिया की. नाउ इट इज़
After having a well-developed or regulated chain of banks, most of the rural people are dependent for their medium and long-term credit on banks. For fulfillment of their long-term and medium-term credit requirement, they are dependent on banks. Okay, but still, for short-term, people are dependent on non-institutional sources. Okay, तो in बैंक्स की डेवलपमेंट, कमर्शियल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स की डेवलपमेंट के साथ साथ जो प्रोपोर्शन है, ओके, जो क्रेडिट प्रोपोर्शन है जो लोग ले रहे हैं वो भी इंक्रीज हो रहा है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं रूरल एरियाज में भी, जिससे कि क्रेडिट रिक्वायरमेंट लोगों की फुलफिल हो रही है। ओके, so out of the institutional credit, cooperative credit contributes nearly 15% and commercial banks about 75%. Okay, because commercial banks की जो branches हैं वो काफ़ी ज़्यादा stretched हैं, फैली हुई हैं, ठीक है। जो cooperatives हैं वो limited हैं, that's why cooperatives के ऊपर जो है dependency इतनी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम proportion, क्योंकि long term credit cooperative societies जो है वो नहीं फुलफिल कर पाती हैं लोगों की, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इतने फंड्स इतने ज़्यादा नहीं होते कि वो ह्यूज अमाउंट जो है लोगों को लेंड कर सके। दैट्स वाई लॉन्ग टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स बैंक्स ही फुलफिल करते हैं। ओके, and these banks, either these are cooperatives, like cooperative societies एक्ट के अकॉर्डिंग वो रजिस्टर हुई हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं, इनको रेगुलेट या कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटीज़ हैं, सर्टेन अथॉरिटीज़ हैं, लाइक नाबार्ड एक एपेक्स अथॉरिटी है जो रीजनल रूरल बैंक्स को कंट्रोल करता है। आरबीआई है जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनको रेगुलेट या कंट्रोल करती है, उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ या रूल्स बनाता है। ओके, सो ऑल दीज बैंक्स आर, all these sources are controlled or regulated by the government or authority of the government. That's why these are institutional sources. Okay, now we talk about all these sources one by one. First one is the cooperative credit society. Now what cooperative credit society is? Cooperative credit society is a group of organized group of people which came together or come together to fulfill their credit requirement. Okay, ये ग्रुप है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है लोगों का जो बनाया गया है अपनी क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। लाइक people who are engaged in farm activities come together or join to form a group. Okay, and then they create a fund with the name of that cooperative society. In this fund, or in the fund which is being created by the people or that group, the people collectively contribute their savings or small proportions of their savings to that fund to make it collectively very large. मतलब जितने भी members हैं वो अपनी सेविंग्स में से कंट्रीब्यूट करते हैं उस फंड में एक अमाउंट, और कलेक्टिवली वो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हर मंथ वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, सो उस फंड में जो एक काफ़ी लार्ज अमाउंट जो है वहाँ पे कलेक्ट हो गई है। whenever any member need any loan or credit, they can take the money out of that or from that fund at a certain rate of interest which is being determined or decided by the group, okay, mutually. मतलब कि लोगों ने ही बनाया ये फंड या फिर लोगों ने ही ग्रुप बनाया टू फुलफिल देयर क्रेडिट रिक्वायरमेंट एंड रजिस्टर themselves एज अ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड वो अपनी सेविंग्स का एक स्मॉल प्रोपोर्शन उसमें जमा कर रहे हैं फंड्स में, और काफ़ी लोग जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ फंड जो है उनमें डिपॉजिट हो गया है। सो whenever the members need money, they can take loan or credit from that fund at the rate of interest which is mutually decided by the group. Okay, ग्रुप डिसाइड करेगा उस इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो लोन ले सकते हैं। ये काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने आप को इनफॉर्मल सोर्सेज और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन से बचा लेते हैं कि जब भी ज़रूरत होगी इस फंड से वो क्रेडिट ले लेंगे, लोन ले लेंगे। ओके, and generally 17% of the total rural credit is being fulfilled by such cooperative societies. तो बेनिफिट्स क्या हैं इसके हमने डिस्कस किया कि एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है, ठीक है। तो जो मनी लेंडर्स हैं या जो अदर इनफॉर्मल सोर्सेज हैं, ठीक है, उनको वहाँ से हटा दिया गया। दैट मीन्स चेन से क्रेडिट, जो सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है उसकी चेन से जो इनफॉर्मल सोर्सेज हैं उनको हटा दिया गया, उनका एक्सप्लॉयटेशन कम हो गया। ओके,
वेरियस रीजन्स में और स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, ये रिमोट एरियाज में भी अवेलेबल होते हैं, तो ये दैट मीन्स क्रेडिट फैसिलिटीज कहीं पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, एंड assures the adequate availability of the credit in the areas where special requirement or specific requirement of credit for रूरल डेवलपमेंट। ओके, ये कुछ स्पेशल या स्पेसिफिक प्रोग्राम्स भी लॉन्च करते हैं जिनसे उन एरियाज़ में जहाँ पे स्पेशल रिक्वायरमेंट है लोन्स की डेवलपमेंट के लिए, उनको भी लोन्स या क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराते हैं। The next one is State Bank of India and other commercial banks. That means we are talking about all the commercial banks in the country. Okay, like SBI being the largest public sector bank or public sector commercial bank in India. Okay, which was set up in 1955. वो भी जो रूरल एरिया के लोग हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है लाइक अदर कमर्शियल बैंक्स। ओके, सो कमर्शियल बैंक्स आर आल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल। आफ्टर नेशनलाइजेशन दीज बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ था, 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था 1969 में। ओके, आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स दीज बैंक्स ऑल्सो फोकस्ड ऑन डेवलपिंग देयर और एस्टैब्लिशिंग देयर ब्रांचेज इन रूरल एरियाज। ओके, नेशनलाइजेशन से पहले इतनी ब्रांचेज हमने कहा कि एक्सेस नहीं था रूरल एरियाज में कमर्शियल बैंक्स का। ओके, सो आफ्टर नेशनलाइजेशन इट वाज फोकस दैट रूरल एरियाज में भी अपनी कमर्शियल बैंक्स अपनी ब्रांचेज एस्टैब्लिश करें, और आज तो रूरल एरियाज में लाइक एटीएम फैसिलिटीज भी जो है कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, the next one is RRBs, regional rural banks and land development banks, the banks which are mainly focusing or which are established mainly to focus on the development of the rural areas or the remote areas. Okay, such banks are established in each and every village, or the branches of such banks are established in each and every village to provide financial assistance to the farmers for their farm activities. Okay, generally these banks are focusing on the weaker sections of the poor people or the small farmers to provide the loans so that they can improve their productive capacity or productivity. Okay, now these banks are divided on these banks work on layer basis. That means उनके जो कोऑर्डिनेशन होते हैं या कंट्रोल हैं वो लेयर बेसिस पे हैं। हमने कहा हर गांव में हर विलेज में ब्रांच सेटअप की गई है, सो दीज ब्रांचेस हैव टू कॉपरेट विद द अदर लेयर्स लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ब्रांच है, ठीक है, वो उनको ऑपरेट कर रही होगी जो फील्ड लेवल पे ब्रांचेस हैं और विलेज लेवल पे ब्रांचेस हैं। ओके, एंड जो स्टेट लेवल की जो ब्रांचेस हैं या हेड ऑफिसेस हैं वो पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं इन आरआरबीज के लिए। ओके, एंड नाबार्ड इज द एपेक्स बैंक, जो नेक्स्ट हमारा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो आरआरबीज हैं रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनको कंट्रोल करता है। Apart from that, if we talk about NABARD, apart from providing the financial assistance to the general people of the rural areas or the farmers, or providing or establishing the guidelines or the provisions for regulating the RRBs, NABARD also focuses on the development of the rural areas or developing the connectivity of the rural areas to the other market areas, like so that farmers can easily carry their farm outputs to the market for selling. Okay, for example, NABARD time to time NABARD launches or provides the programs for building roads, for the better connectivity, for providing power facilities or power generation facilities to the rural areas so that the farmers can increase their irrigation capacity. Okay, मीन्स नाबार्ड जो है सिर्फ बैंक्स को कंट्रोल करने का काम नहीं करता है, आरआरबीज को कंट्रोल करने का काम नहीं करता है। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चरल कैपेसिटी को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए सर्टेन प्रोग्राम्स भी लॉन्च करता है, लाइक फार्मर्स को अपने फार्म आउटपुट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए या बेचने के लिए प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े या इनकन्वीनियंस ना हो, ये रोड्स भी डेवलप करता है, ठीक है, पावर जनरेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर इरिगेशन कैपेसिटी। ओके, फार्मर्स को इरिगेशन कैपेसिटीज भी इम्प्रूव हो। ओके,
सो रूरल यू कैन से रूरल डेवलपमेंट के लिए जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू उनको प्रोवाइड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस बैंक नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये जो गवर्नमेंट है या फिर जो अदर जो एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक आरबीआई, ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करता है टू फॉर्म पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। लाइक क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं रूरल, या कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है रूरल एरियाज के डेवलपमेंट में या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, उनको असिस्ट करने में, या उनको असिस्ट करने के लिए गवर्नमेंट और जो अदर एपेक्स बैंकिंग अथॉरिटी है लाइक आरबीआई, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करके चलता है। सो दैट यू कैन से जो नाबार्ड है वो जितनी भी रूरल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, एक्सेप्ट कमर्शियल बैंक्स, एक्सेप्ट कमर्शियल बैंक्स को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो जितने भी रूरल रीजनल बैंक्स हैं उनको ऑपरेट करने में हेल्प करता है, उनके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, सो दैट कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ रूरल क्रेडिट कैन बी इंश्योर्ड। ओके, सो ये हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस थे या सोर्सेज थे, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के, जो हमने पढ़े। ओके, सो इट वाज द वन ऑफ द लिंगरिंग चैलेंज रूरल क्रेडिट विच वी हैव डिस्कस्ड, जो कि हेल्प करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी या फिर लाइक प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, जिससे कि रूरल एरिया में जो लोग हैं उनकी इनकम इंक्रीज हो, और सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके।